Thank you so much for giving me an opportunity to talk to the audience here. Okay, this is about my cycling journey, and this December I'll be 73. Wow. Said. And as ma'am said, 2 years back, I got this in November 21. At that time, I had done 41,500 kilometers. And as of now, I have crossed 64,000 kilometers. Wow. Amazing. You see, I retired from Bhabha Atomic Research Center. Everyone recognizes this dome. This is the Cyrus reactor. And I retired in 2010. And in 2005, I had my heart bypass operation. Now, when you say, oh, I say, I'll tell you why. Because I thought a new engine is fitted in an old car. Yes. So now it can run without any fear. So what you say, oh, is So that's the difference our perspective can make. Now, you see the message. Now, you see, I cycled from Pune to Mumbai and Mumbai to Pune. And that's how I travel with these two bags. And you see, that's in Mumbai. And you see, when we can go all over the city and explore various lanes, sometimes, you see, when we don't have a work, we don't go in those directions. But when you are paddling, you are exploring new areas and you are one with the nature. You see, and when you go with your friends, they are the youngsters who can throw you in water like this. Now, at my age, I don't hope to. So, you see, I don't expect my colleagues to do this to me. It's only the youngsters. So when we go cycling, you have different groups, and you interact with people in all age groups. And you see, you can enjoy nature. And you see, I capture these moments in the camera because every time, I mean, if I want to relive the moment, I look back at the pictures. And that's how I normally. So this is the cycling gear I have to wear because these clothes are quick drying ones. And in this dress, I can't pedal. So you got to have the proper dress and a proper cycle. And you should know how much is the air pressure, what should the seat height, because all the tires are marked with the air pressure. So unless you have this basic information, only then the cycling becomes enjoyable. Otherwise, people will say, oh, give up, मेरे से नहीं होता, मैं इसके ज़्यादा नहीं कर सकता. ऐसा कुछ नहीं है. और जैसे आप practice करेंगे ना, you see, for all this, I had the inspiration from my son. He cycled from Pune to Goa. And then I thought, okay, let me see if I can travel. I can do 25% of what he has done. And so that motivated me to start cycling. What's this? Okay. I cycled from Mumbai to Statue of Unity. It took me 3 days, cycling 150 kilometers each day. And you see, when we go and the nature, we go close to the nature, and it gives a different experience altogether. Coming back, cycling it's a way of life. And this helps me to stay fit for a longer period. And also, we can ensure the last 10 years of my life will be quite good. I mean, I won't be lying on a bed for a longer period. So that's what I plan to do. And I can share two things with you. One, when I got my angiography done, they told me that there is an auxiliary bypass system in everybody, but that remains dormant. And because of cycling, that has opened up. So I have 2 modes of blood supply to the heart, and all because of cycling. And one more thing I'll tell you, I got my knee x-ray done. I thought, okay, let me just explore. Let me see. Come in. Let me see if how is my knee health. And when the orthopedic surgeon looked at it, he said, this is the knee x-ray of a 25-year-old. So in short, good health is in our hands. And whichever sports we pursue, if we can
devote some time for ourselves. It's for everybody. We should have 1 hour for ourselves to keep ourselves in good shape. And that's a message. I'm a living example of those who have gone through a heart operation in your family. Please tell them this is not the time to relax. After 2 years, after the wounds have healed, is the time to pull up the socks and burn the road. So that's a small message I have. मैंने जिस एज पे शुरू किया सीरियस साइकिलिंग मैंने शुरू की एट द एज ऑफ 55 में तो ऑपरेशन हुआ था. नाउ आई एम 73. आई स्टार्टेड 5 years back. I started cycling 5 years back only. Prior to that, I was cycling a little only, not much. So, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ और सबके लिए बोल रहा हूँ. आपके पास बहुत टाइम है. Even if you start at my age, then you will be like me at my age. Yes. And if you start early, you will be better than me at my age. Right. So now it's up to you how much bonus time you want to I will use. definitely start. You start tomorrow, but then please buy the right cycle, and it should be a geared cycle first. And talk to someone who is already cycling, and then all these points that I have told, if you follow, it will be an enjoyable thing. Sure, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और आज मेरे हाथ में एक खास ट्रॉफी आप देख ही पा रहे हैं और ये इसे पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वही मेहनत का नतीजा जिन शख्स को मिला है वो आज हमारे साथ हैं और हम बैठे हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर. तो हम दिखाएंगे कि ये जो ट्रॉफी मिली है, ट्रॉफी के पाने वाले, IBR का रिकॉर्ड बनाने वाले, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने शख्सियत हमारे साथ हैं. सर नमस्कार. नमस्ते. नमस्ते सर, एक तो ये बताएं आपका नाम क्या है, दूसरा ये क्या अचीवमेंट आपने तैयार किया जिससे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया. मेरा नाम राजकुमार शर्मा है और जब मैंने साइकिलिंग शुरू की तो ऐसा सोचा नहीं था कि कोई मैं रिकॉर्ड बना लूँगा, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने के लिए अक्सर क्या लगता है कि आप कश्मीर से शुरू हुए और कन्याकुमारी आप 5 दिन में पहुंच गए तो वो रिकॉर्ड बन गया. जबकि मैं तो 5 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ और जब मेरा 40,000 किलोमीटर साइकिलिंग हो गए और ज़मीन की गोलाई जो है वो भी 40,000 किलोमीटर है, तो मेरे एक मित्र मिले, बोले आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को क्यों नहीं अप्रोच करते. मैंने कहा मैं कैसे, मतलब ये तो वैसे मेरे हिसाब से नहीं बनता था. उन्होंने कहा आप अप्लाई करो, हो सकता है बन जाए. तो मैंने जो मेरा डाटा, स्ट्रावा एक एप्लीकेशन है जिसमें पूरा मेरा रिकॉर्ड था कि मैंने कब कब कितनी साइकिलिंग की, कितने पीरियड में की. तो वो डाटा के साथ जब मैंने अप्रोच किया तो मुझे पता लगा ये तो रिकॉर्ड बन गया. तो देखिए, हंसते गाते खेलते हुए और सेहत बनाते बनाते रिकॉर्ड बन गया है. आप ऐसा समझिए. सर, ये माइंड कैसे सेट हुआ कि साइकिलिंग करना चाहिए. अरे हाँ, ये बहुत ज़रूरी है. जब 2005 में मेरा हार्ट का बाईपास ऑपरेशन हुआ तो 2 साल के बाद मेरे वुंड वगैरह सब हील हो गए. तो मुझे लगा अब नया इंजन मेरे में फ़िट हो गया है, अब मैं मन चाही एक्सरसाइज कर सकता हूँ. तो मैंने साइकिलिंग शुरू करी और उस समय मैं 5-10 किलोमीटर साइकिलिंग करके फिर योगा वगैरह गार्डन में ऐसे करता था. और 2018 में मेरा बेटा पूना से गोवा तक साइकिलिंग करके गया. अच्छा. अरे मुझे लगा मैं चलो ट्राई तो करूं, 25% तो कर लूँगा. अभी मैं 10-15 किलोमीटर करता हूं तो अब शायद मैं 25-30 किलोमीटर कर लूँगा साइकिलिंग. वो साइकिलिंग करते करते इतना मज़ा आने लग गया कि अभी मैं पूना से मुंबई तक साइकिल पे आता हूँ और 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर होता है एक दिन में, और पहुँच के भी मुझे थकान नहीं होती. मैं इस तरह से साइकिलिंग करता हूँ कि मेरे पे जोर ज़्यादा ना पड़े और इन्जॉय करता हुआ आता हूँ. तो इस तरह से आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि लोनावाला के बाद इतनी ढलान, इतनी तेज़ स्पीड से साइकिल चलती है और आपको वो ब्रेक मेंटेन करना वो बहुत ही चैलेंजिंग काम है. और अभी तक जब ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया था ना 2 साल पहले, उस समय मेरा 41,500 किलोमीटर हुए थे और इस टाइम पर मैं 64,000 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ. अरे
सर बहुत अच्छी बात है, साइकिलिंग हमारे इंडिया में की भी जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ने डेवलपमेंट की तरक्की की हम साइकिलिंग से दूर हो गए। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान। साइकिलिंग से आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपने अपनी बीमारी को दूर किया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। क्या कुछ सावधानी की भी ज़रूरत होती है जिससे कि नुकसान ना हो? बिल्कुल, देखिए बहुत सावधानी। आप किसी से भी मैं बात करता हूँ, वो बोलते हैं आप हाईवे पे जाते हो, एक्सीडेंट का चांस होता है, इतने बड़े बड़े ट्रक आते हैं, ट्रॉलर आते हैं, तो आप कैसे संभालते हो? तो इसमें सेफ्टी गियर पहनना बहुत ज़रूरी है। एक तो हम हेलमेट हमेशा पहन के रखते हैं। टचवुड, मुझे अभी तक कहीं सिर पे गिरने का नौबत नहीं आई, पर जब प्रॉब्लम आती है बता के नहीं आती। तो हेलमेट पहनना, रात के टाइम साइकिलिंग लाइट्स होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव गियर हो, जैकेट हो तो वो और भी अच्छा है। और मैं रियर व्यू मिरर लगा के चलता हूँ, तो मुझे पता रहता है मेरे पीछे से कौन सा ट्रैफिक आ रहा है। तो जैसे अगर मुझे लगता है कि हैवी ट्रैफिक आ रहा है, मैं सड़क से उतर के लेफ़्ट साइड में होता हूँ। और जब भी मैं साइकिलिंग करता हूँ हमेशा एकदम लेफ़्ट में साइकिलिंग करता हूँ, जिससे जो बाकी तेज़ जाने वाला ट्रैफिक है वो आराम से चला जाए। और अगर मैं मुड़ता हूँ तो हाथ का इशारा दे करके। एक और बड़ी ज़रूरी चीज़, कभी भी मैं यू टर्न लेता हूँ, साइकिल से उतर के पैदल जा कर के फिर मुड़ता हूँ मैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान रखें तो मेरा यकीन है कि जो भी लोग सड़क पे करते हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं और वो आपका खूब ध्यान रखते हैं। पर हमें भी ऐसा करना है कि हमें भी ध्यान रखना है कि उनको कंफर्टेबल रहे कि वो हमें हिट ना कर सकें। अभी आपने सावधानी और सतर्कता दोनों बताई। आपने अभी हमें बताया कि आप हार्ट पेशेंट हैं। अब क्या क्या बीमारी है? मैं हार्ट पेशेंट था, हाँ, अभी हूँ नहीं। Great. और एक और आपको बताता हूँ मैं, जब मेरा हार्ट का इन्वेस्टिगेशन हुआ, एंजियोग्राफी हुई, तो ये पता लग गया कि जो मेरा दबा हुआ एक ऑक्सिलरी सिस्टम हम सब में होता है वो ओपन हो गया, उसको लेड आर्टरी बोलते हैं। मेरी लेड आर्टरी ओपन हो गई है। अब उसका क्या मतलब है कि बाईपास के थ्रू तो सप्लाई हो ही रहा है, पर बाईपास की कई बार बोलते हैं उसकी लाइफ होती है 15-20 साल। अभी दूसरा जो नेचुरल सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो गया। तो उसके करने के बाद अभी जब मैंने अपना ट्रेडमिल टेस्ट कराया था तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब आप बिंदास, बोलते हैं मुंबई की भाषा में, बेफिक्र होकर के अब आप साइकिलिंग करो, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। रिकॉर्ड तो आप बनाएंगे साइकिलिंग से कुछ अच्छा करके, लेकिन अपने आप को जीवन देंगे, ये अपने आप में बड़ी खास बात है। सर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग यूनिक हट के काम करते हैं उसको रिकग्निशन देना और ऐसे प्रतिभा को लोगों के सामने लाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो भी इसकी एक्टिविटी थी उसको पूरा किया। और आज का भी जो इन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया बहुत अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से, जिससे हम लोगों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, ऐसे इनका किया है। तो इनका मैं धन्यवाद करूँगा। सर, आपकी एज क्या है? मैं बोलता हूँ मैं सिर्फ 73 ओनली वर्ड ज़रूरी है। अभी 73 के आप बोलिए, हमारे लिए बहुत सीनियर हैं और हम आप की सारी बातें ज्ञान वाली हैं। ऐसे लोग जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, ऐसे लोग जो निराश हो जाते हैं इस एज तक आते आते, उन लोग को क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है कि आप जो भी सिचुएशन होती है कई बार हमारे हाथ में नहीं होती। हमारे हाथ में क्या होता है, हम उस पर रिएक्ट कैसे करें। तो अगर कोई ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन है, प्रेशर है, उसको आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप में की क्षमता ज़्यादा रहेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो अगर हम ये जीने की कला सीख लें, इसको आप बोलिए गेंडे की खाल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर छोटी छोटी बात, किसी की कही की बात का आप बुरा मान जाओगे और अपने आप को कष्ट में डालोगे तो आप उसका और किसी का नहीं, अपना बुरा कर रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप और खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में यहाँ पर अर्थ में आने का हमारा मकसद ये है कि हमें खुश रहना है। तो पहले यहाँ का स्वर्ग भोगना है, फिर ऊपर का स्वर्ग भोगेंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे राजकुमारी जी, जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है साइकिलिंग करके। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार।